everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो प्रियल मैम लेकर आई है the most important video from the chapter real numbers, जहां पर हम concept की बात करेंगे, जहां पर हम इस chapter के थ्योरम की बात करेंगे और इस चीज की श्योरिटी है ही कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का जो मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ वो एग्जाम में आने ही वाला है एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2, √3, 5 + √2, √7, √9, √10 आर दी इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक बिकॉज व्हाटसोएवर आई एम राइटिंग अप हियर यू आल्सो हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो लेट्स बिगिन द क्लास एवरीबॉडी। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। Plus is different from other edtech platforms. Rank Plus provides you gamified quiz जिसमें आप participate करके आप अपना subject strong कर सकते हैं with your friends. तो वो boring subject नहीं, interesting और fun learning subject बनाता है Rank Plus. Then we do have a small size of batches. Rank Plus में आपको भीड़ नहीं मिलती है, आपको बहुत छोटे-छोटे small size of batches मिलते हैं जहां पर you will be going to get the quality content where you will be getting the best content from the top educators from all over the country. You will be experiencing AR, VR, 3D classes. You will be getting daily self-analyzer which is just a kind of DPP, daily practice paper. Once you attend your lecture, जैसे lecture खत्म होगा उसके बाद आपको assign हो जाता है एक DSA in which you can practice sums over that particular lecture. Then we do have a live interactive classes. Then last but not the least, we also provide one-to-one mentorship with mental and emotional well-being. So Rank Plus कौन-कौन सी classes को cater करता है? तो let me clear one thing very clearly. अगर आप aspirant हैं class 8, 9, 10th, 11, 12th, IIT JEE, NEET, then Rank Plus is just a one-stop solution because एक under the same roof इतने सारे अलग-अलग segments मिलते हैं आपको, तो कहीं इधर-उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है because Rank Plus can be your one-stop solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले one of the most important theorem which you must be knowing before solving those questions in which you have to prove that √2 is an irrational number, √3 is an irrational number, √5 is an irrational number. So let's dive into the session and the first theorem says, theorem 1.1 says, let P be a prime number. हमने मान लिया कि P जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है. If P divides A square, then P divides A where A is a positive number. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. Let P be a प्राइम नंबर. P आपका एक प्राइम नंबर है, हमने मान लिया, ठीक है. अगर मैंने प्राइम नंबर ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल 5, ठीक है, मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल 5 बच्चों, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल A स्क्वायर मैंने ले लिया 625 which is basically A is 25, right? If 5 divides 625 then 5 divides 25 as well. This is what the theorem says. ये एक थ्योरम कहलाती है कि अगर P एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर 5 जो था ये एक प्राइम नंबर था, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, अगर 5 625 को डिवाइड कर रहा है, then P divides A where A is a positive number. तो फिर 5 जो है, ये जो 5 है, this is your P, that is your prime number. This 625 is your A square. Then this P will also divide 25 which is A, जो कि आपका A है. आई एम होपिंग कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई है. अब हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हमें प्रूव करना होता है दैट √2 इज एन इरेशनल या फिर √3 इज एन इरेशनल, वहां पर ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. तो चलिए बात करते हैं कि हाउ टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो 4 नंबर से कम में नहीं दिखेगा. 3 to 4 मार्क पे ये क्वेश्चन आता है और हर बार ही आता है. और रियल नंबर से अगर मैं बात करूं तो देयर आर ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स, एक है HCF LCM बेस्ड एंड द अदर वन इज दिस वेयर यू हैव टू प्रूव द पर्टिकुलर नंबर एज अ इरेशनल नंबर. तो ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस जरूर और जरूर एग्जाम में आते हैं. तो चलो लेट्स डाइव इनटू द सेशन. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो फॉर प्रूविंग √2 एज एन इरेशनल नंबर वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट लेट √2 बी अ रैशनल नंबर. ऐसा क्यों? जो भी हमें प्रूव करना है उसका उल्टा अज्यूम कर
लेते हैं। अगर हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इरैशनल नंबर है तो लेट्स अस कंसिडर दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। फिर हम जब आगे सॉल्व करेंगे और अगर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करी तो फिर ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि यार रैशनल नंबर हमने ऊपर अज्यूम किया था बट नीचे जब हमने सॉल्व किया तो रैशनल नंबर तो नहीं आ रहा है, दैट मींस रूट 2 जो है वो इरैशनल नंबर है। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे, लेट रूट 2 be a rational number in the form of a upon b where b is not equal to 0, a and b are co-prime। अब काफी सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं व्हाट इज co-prime। ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ये तो बिल्कुल आपका एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 and p and q belongs to integers, राइट? तो आप यहाँ पर वो भी लाइन ऐड कर सकते हो, in the form of a upon b where b is not equal to 0 and a and b are co-primes। a और b क्या है? आपके co-prime नंबर है। अब जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है that is what are co-prime। Co-prime numbers are the numbers which is having the highest common factor equal to 1। I'm repeating it up। आपका ये जो co-prime number होता है these are the numbers which is having the highest common factor equal to 1। ऐसे कौन से numbers हो सकते हैं मैम? अगर मैं बात करूं आपकी 18 and 35 की, 18 and 35 are your co-prime numbers। Why co-prime numbers? चलिए मैं एक बार इसको भी डिटेल में समझा देती हूँ। अगर आप 18 के फैक्टर्स करेंगे तो you will be getting what? This। अगर आप 35 के फैक्टर्स करेंगे you will be getting what? Are these फैक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर? यहाँ पर HCF क्या आ रहा है आपको? इन दोनों का HCF जो मिला आपको वो मिला 1। So therefore we can say that 18 and 35 are co-prime numbers because they are sharing the HCF which is equal to 1। Understood? तो हमने यहाँ पर बोल दिया that A and B are co-prime and co-primes are numbers with HCF 1। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नोट बना के इसको लिख लो कहीं कॉपी में ताकि आपको याद रहे, कभी आप कंफ्यूज ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हमने क्या लिया है दैट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, राइट? यही तो हमने लिया है कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है विच इज इक्वल टू a अपॉन b, दैट ओनली आई रोट इट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसको लिख दूंगी b रूट 2 इक्वल टू a, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे ये रूट 2 हटाना है तो रूट 2 हटाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी बेटा लोग तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई बी गेटिंग 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट और नॉट? जल्दी से बता दो। अगर मैंने इसको इक्वेशन, अगर मैं इसको 1 मान लेती हूँ तो अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया है तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट? नाउ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पर 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है यूजिंग थ्योरम 1.1 जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। अगर कोई भी प्राइम नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट विल आल्सो गोना डिवाइड a। तो सेम चीज यहाँ हो रही है, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है then 2 will also gonna divide a। तो बस वही चीज लिख देंगे यहाँ पर। if now 2 divides a square therefore 2 divides a as well। how? by theorem। हमारा जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। Any confusion in this? Any doubt in this? पूछो। Let a be equal to 2c। हमने मान लिया कि जो a है that is equal to 2c। एक कोई भी constant ले लिया where c is a constant। ठीक है, तो हमने जब constant लिया अब हम क्या करेंगे? Now we are going to put this a equal to 2c in this equation। अब हम इसको प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है तो नाउ पुटिंग a इन इक्वेशन 2, इसको मैंने इक्वेशन 2 में पुट करना है। अब हाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू एन इक्वेशन? बच्चा लोग हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट अप। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a इज व्हाट? 2c का होल स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। इज द इक्वेशन नंबर 3 इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2। 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था यहाँ पर है b स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। नाउ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर
2 डिवाइड्स b एज वेल। 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, राइट। नाउ अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय थ्योरम। अब तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? यहाँ पीछे दिखा रहा था कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ दिखा रहा है कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b में देयर आर मोर फैक्टर्स देन 1। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है ये 1 के सिवा 2 भी तो है। हमने बट स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, दैट a and b are the co-primes which is having the highest common factor equal to 1, right? बट जब हमने इसको सॉल्व किया then we got to know that there are having more than 2 factors. Now we can see that a and b has 2 as a common factor. Therefore this contradicts the fact that a and b are co-primes. यहां पर तो हमारी बात झूठी साबित हो गई। This contradicts the fact that a and b are co-primes, everybody. तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? Therefore we can say that √2 is not a rational number, hence √2 is an irrational number, and this is how you guys have to prove this entire question. और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। This is one of the most repeated question ever in the entire history of CPSC. अब हाँ, दिस कैन बी चेंज, √2 की जगह √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, दिस डिपेंड्स, बट द प्रोसीजर एंड एंटायर थिंग विल गोना रिमेन सेम। बच्चों हमने स्टार्टिंग में लिया था दैट a and b आर को-प्राइम, बट आफ्टर सॉल्विंग अप द क्वेश्चन हमें मिल गया कि a और b को-प्राइम तो नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मींस a and b हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो वो को-प्राइम तो हो ही नहीं सकते, और स्टार्टिंग में हमने a और b को को-प्राइम लिया था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को-प्राइम, एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट √2 इज एन irrational number. I hope this question is clear, this concept is clear, one of the most important. चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से जाओ स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू हैव टू प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव कर दो, और अगर क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट बॉक्स इस वीडियो के बाद इनेबल हो जाएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, सभी को समझ में आया या नहीं आया। मैं बोलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।